And the final exam, you will have to attempt 50 MCQ questions, and the maximum question will be from this assignments. So prepare this MCQs properly. So on the last day, you have to appear in a final exam having a 50 MCQs. So I am just solving this MCQs. Who has created the Python? So Guidovan Rosen. Which is not the feature of the Python. In this case, Python also supports the OPS programming language. So this is not true related with the feature of the Python, which is used to define the comments in the program. So this one is has sign. Dash is not a reserved word. So in this case, import, for, and while or are the reserved words. Only unknown word is not in the reserved word list, which is an invalid identifier. So in this case, this percentage sign is not allowed as a character set in a variable or identifier name. So this one is an invalid identifier or a invalid variable. So the rules for naming the identifier and the variable is same. In this case, this one is invalid just because you have use this percentage character in this case. Next is the question number 2. What is the output? So in this case, we are going to assign 3 variables in a single statement. In a normal language, such type of assignment is not allowed. But in case of Python, you are able to assign 3 different data to the 3 different variables in a single statement. In this case, you can see that x, y, and z, all the 3 variables are going to assign with the orange string word. But in this case, the x, y, and z, all the variables will store the different literal. So x will have the orange, the y will have the banana, and the z will have the cherry word. In this case, we have a x equal to 10 and y equal to orange. And in this case, we are going to apply the plus sign. Plus is normally used for the addition purpose. But plus sign behavior depends upon the data type. And data type defines the type of operations allowed on the data. So in this case, this is in integer data, but this one is in string data. So plus sign is not able to perform the addition operation between the two different data types. So plus sign is able to perform the concatenation between the two string data and arithmetic sum between the two number data. अगर सिमिलर डाटा है यानी कि दोनों ही नंबर हैं तो प्लस साइन वहां पर अरिथमेटिक सम परफॉर्म करेगा। अगर दोनों ही स्ट्रिंग डाटा है तो उस केस में वहां पर कॉन्केटिनेशन ऑपरेशन परफॉर्म होगा। So same is the problem with this data also. In this case also, this 10 is in number data, but this 2020 is in string data. And in this case, concatenation cannot be performed. So let me see this example. So in this case, we have this x equal to 10 and the y equal to this 20. So in this case, x is integer data and y is the string data. And in this case, if you want to perform the arithmetic sum between these two data, you will get an error message. And the reason is concatenation or the arithmetic sum cannot be performed between the two different data types. So
जब भी प्लस साइन का यूज कर रहे हैं, सिमिलर डाटा का होना जरूरी है। सो अगर हम यहाँ पर y इक्वल टू 20 लिखें तो क्या होगा? सो इन दिस केस अगर x प्लस वाई परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पर x भी न्यूमेरिक है और y भी न्यूमेरिक है, तो यहाँ पर अर्थमेटिक रिजल्ट 30 आपके पास आ रहा है। बट अगर हम यहाँ पर x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 20 लेते हैं, और इस केस में दोनों ही स्ट्रिंग डाटा हैं, और यहाँ पे अगर हम x प्लस वाई परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे तो अकॉर्डिंगली वी विल गेट अ 1020, एंड द रीजन इज in this case the plus sign is performing the concatenation between the two string, तो दो स्ट्रिंग को आपस में वो ज्वाइन कर दे रहा है। तो अगर यहाँ पे सपोज ये अजय है और y में वर्मा है और यहाँ पर हम x प्लस वाई करते हैं, तो x और y में जो डाटा है दोनों ही आपस में ज्वाइन हो जाते हैं। सो आई होप द रीजन फॉर एरर इन these two cases is clear. So the reason is plus sign can be used between the number data type or between the string data type or between any other similar data type. तो अगर हम यहाँ पर 10 ले और प्लस 11.75 करें तो क्या इस केस में रिजल्ट आएगा या एरर आएगा? क्योंकि 10 और 12.75 दोनों ही अलग टाइप के डाटा है। इस केस में एरर आएगा या रिजल्ट कैलकुलेट हो जाएगा? इस केस में एरर आएगा या रिजल्ट कैलकुलेट होगा? रिजल्ट कैलकुलेट होगा। 22.75। तो एरर यहाँ पर क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि प्लस साइन सिमिलर डाटा के बीच में ही यूज होता है। तो यहाँ पे 10 और 12.75 दोनों अलग अलग टाइप के डाटा हैं, एक इंटेजर है और एक फ्लोट है, तब भी यहाँ पर प्लस साइन वर्क कर रहा है। क्या रीजन हो सकता है? सर दोनों नंबर के अंतर्गत आते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा, इंटेजर और फ्लोट दोनों ही नंबर ग्रुप के अंदर आते हैं। So in Python, we do not have an integer or float as a different data type, but both comes under a number data type. So both are treated like a number. So we are able to perform the addition between the integer and the float data. Next is write a program to print your name and the age. So we are going to write a script file for this. Print your name and the age. So in this case, we are just going to take a simple variable name and the age. And this data can be displayed by using a print statement.
So in this case, this is the name Ajay Kumar and the age is 30. और मैंने कल आपको बताया था कि अगर आपको मल्टीपल मैसेज और वेरिएबल को प्रिंट करना है तो आप फॉर्मेटेड आउटपुट की भी हेल्प ले सकते हैं। तो इन दिस केस अगर आपको फॉर्मेटेड मेथड का यूज करना है तो ऐसे केसेस में जो भी वेरिएबल हैं उसे हम कर्ली ब्रैकेट में स्पेसिफाई करते हैं। लाइक दिस। और ये जो डाटा है इसमें ये मैसेज है और ये वेरिएबल है। ये मैसेज यानी स्ट्रिंग कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है। इन वेरिएबल की वैल्यूज को हम प्रिंट करना चाहते हैं। सो इन दिस केस यू हैव टू जस्ट राइट अ एफ। अगर आप एफ नहीं लिखते हैं तो क्या होगा पहले में देख लें। तो यहाँ पर नेम, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर नेम और कर्ली ब्रैकेट के अंदर एज एज इट इज डिस्प्ले हो रहा है। बट इफ आई राइट एफ हियर, जस्ट एफ, so this variable is replaced by its actual value। एज के अंदर 30 स्टोर था तो 30 डिस्प्ले हो गया और नेम में अजय स्टोर था तो अजय कुमार यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। संदीप, आपको ये क्लियर हो पाया? क्योंकि आपके असाइनमेंट में भी फिर प्रॉब्लम था, आपने कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट पहले ही क्लोज किया हुआ। हाँ जी सर, अभी क्लियर हो गया सर। ठीक है। तो इसीलिए असाइनमेंट को सॉल्व करना ज़रूरी है ताकि पता चल सके कि कहाँ पर किसी प्रॉब्लम आ रहा है। उस कंसेप्ट को फिर से यहाँ पे रिपीट किया जा सकता है। सर So the next one is this program। पर अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम को यहाँ पे लिखना चाहते हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 एंड नाउ आई वांट टू राइट द क्वेश्चन नंबर 4 हियर एंड आई वांट टू कन्वर्ट द कंप्लीट लाइन इनटू अ कमेंट। ऐसे हम सभी लाइंस को कमेंट्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो सिंगल लाइन को कमेंट में कन्वर्ट करना है। कमेंट मीन्स द डिस्क्रिप्शन लाइन, so that compiler will ignore that particular line and that line is not going to be executed। तो यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल लाइंस है और ऐसे केस में सभी लाइंस को कमेंट्स में कन्वर्ट करना है तो आप ट्रिपल कोट्स की हेल्प से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा लाइन आपका एज ए कमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो नाउ आई एम गोइंग टू राइट द क्वेश्चन नंबर 4। In this case, we have to take three variables: A 10, B 20, C 30, and then we have to calculate the result here: A plus B plus C, and then we have to display the output in this particular format. So the format of the output is sum of first variable, second variable, third variable is then this result, or just close this parenthesis so that print statement is complete। just put the F symbol here। F symbol से यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं उन वेरिएबल्स की वैल्यू अकॉर्डिंगली यहाँ से रिट्रीव होगा और यहाँ पे रिजल्ट आपका डिस्प्ले होगा। So the sum of the 10, 20 and the 30 is 60। So by using this formatted output, we are able to print this particular फॉर्मेटेड आउटपुट। बट अगर आप सिंपली सिंगल कोट्स के मेथड से ये सेम आउटपुट डिस्प्ले करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। उसे हम देखते हैं कैसे प्रिंट किया जा सकता है। सम ऑफ ए
B and C is this R. So by using the normal method of printing message and a variable, we are also able to print such type of formatted output. यहाँ पर भी सेम टाइप ऑफ आउटपुट हम डिस्प्ले कर पा रहे हैं, but we need to maintain the starting and the ending codes. So we have to check whether the all opening codes are closed or not. तो आप इस टाइप से भी मैसेज डिजाइन कर सकते हैं, बट जब भी प्रॉपर वे में आउटपुट फॉर्मेटेड आउटपुट डिस्प्ले करना है, तो इट्स बेटर टू राइट सच टाइप ऑफ फॉर्मेटेड आउटपुट स्टेटमेंट्स, क्योंकि यहाँ पर आपको मल्टीपल स्टार्टिंग और एंडिंग कोड्स को ध्यान रखने की जरूरत नहीं होती है. Okay, so the next one is write a program to calculate the area of a rectangle. Now again, I am going to comment this question number 4. So starting from the question number 4 and 3, both are commented here. Now I am going to write the question number 5. In this case, we need to calculate the area of a rectangle. So this is the length and this is the width. And in this case, area can be calculated just by calculating the product of the two numbers. So area of a rectangle having a dimension of 10 cross 15 is 150. अब यहाँ पर ये फिक्स वैल्यूज हैं, and we need to calculate the area of a rectangle for the value that we have entered. अब यहाँ पे हम 10 और 15 की जगह कुछ वैल्यूज हैं, उसके बेस पर हम एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं. सो हाउ द लेंथ एंड विड्थ कैन बी रीड फ्रॉम द कीबोर्ड. So in that case, instead of a length and width, by assigning a length and width, we can use the input statement. तो हम यहाँ पर input statement की हेल्प से डाटा को रीड कर सकते हैं. Enter length. Similarly, but input, enter width. तो अब हमने यहाँ पे लेंथ और विड्थ को इनपुट कर लिया, मीन्स कीबोर्ड से हम रीड करना चाहते हैं. So let me see whether this program is able to perform the operation on this data or not. So instead of calculating a product, I am just going to print the length plus this width. I am just going to calculate the sum of these two numbers. तो हमने लेंथ और विड्थ को रीड कर लिया है, और हम यहाँ पे लेंथ और विड्थ के एडिशन को प्रिंट करना चाहते हैं. अब हम यहाँ देखेंगे इस केस में क्या रिजल्ट आए. So enter the length. So in this case, I have entered 15. Enter the width. In this case, I have entered a 25. And in case of a result, what we get? 15 and 25. So हमने जब लेंथ प्लस विड्थ किया तो रिजल्ट क्या आया? 15 प्लस 25. और आना क्या चाहिए था? 40. तो क्या आप बता सकते हैं कि इसका रीजन क्या हो सकता है?
कोई रीजन है क्या इसके पीछे कि इंस्टेड ऑफ 40 यहाँ पर 1525 क्यों आया? सर लेंथ और लेंथ प्लस विड्थ को हमें कॉमास के अंदर लिखना हो। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, 10 सर जो प्लस इंटर लेंथ है, हाँ 15 जब करते हैं इस केस में क्या आ रहा है 1015, और 10 प्लस 15 करते हैं तो क्या आ रहा है 25। तो क्यों आ रहा है ऐसा? अगर स्ट्रिंग डाटा है तो वहां पे कॉन्केटिनेशन परफॉर्म होगा, और अगर न्यूमेरिक डाटा है तो वहां पर एडिशन परफॉर्म होगा। और यहाँ पे जब हमने लेंथ और विड्थ को रीड किया तो यहाँ पे क्या परफॉर्म हो रहा है, कॉन्केटिनेशन, दोनों को ज्वाइन कर रहा है। इट मींस इनपुट ने हमें डाटा रीड करके दिया, लेकिन किस फॉर्मेट में दिया? फॉर्मेट में। इनपुट ने जो डाटा स्ट्रिंग फॉर्म में मिला है सर। स्ट्रिंग फॉर्म में, बिल्कुल। यानी कि जो डाटा हमें मिल रहा है वाया इनपुट स्टेटमेंट, वी आर able to read the data and able to store in a length and a width variable but in a string format. So अगर string format में डाटा है तो वहां पर आप प्लस साइन तो परफॉर्म कर सकते हैं, प्लस का मीन्स परफॉर्म द कॉन्केटिनेशन। और अगर हम इसे मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो let me try to multiply these two variables. Same value I'm going to enter, 15 and the 25. So addition is performed here, but multiplication is not performed on the string data. तो हम प्लस साइन से कॉन्केटिनेशन तो कर सकते हैं क्योंकि प्लस साइन स्ट्रिंग डाटा के ऊपर अप्लाइड है, बट मल्टीप्लाई के लिए दो स्ट्रिंग वैल्यूज हम नहीं ले सकते। तो इन दिस केस what we want to perform, I want to perform the numeric addition and the numeric multiplication. So यहाँ पर आपको ये जो लेंथ और विड्थ है इसे न्यूमेरिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। तो this conversion can be done by using this conversion function, the int, and similarly तो अब हमने क्या किया, जो डाटा रीड कर लिया है इनपुट के थ्रू लेंथ और विड्थ में, ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में, और इस स्ट्रिंग डाटा को हमने यहाँ पर इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। तो अब ये इंटीजर डाटा है। अब हम चेक करते हैं कि ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या रिजल्ट देंगे। So again I am going to enter the same value, the 15 and the 25. So in this case you are getting a arithmetic 40, arithmetic addition result, that is 40, and similarly 375, that is the multiplication of the 15 and the 25. तो जब भी आप इनपुट से डाटा रीड करते हैं तो आपको अप्रोप्रिएट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होता है। तो डाटा अगर आप न्यूमेरिक फॉर्मेट में दे रहे हैं तो उसे इंटीजर कन्वर्जन फंक्शन को यूज करके आपको उसे इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा। ओनली देन यू आर एबल टू परफॉर्म द अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन दैट पर्टिकुलर डाटा। तो कन्वर्ट करने के बाद अब हम अपने नॉर्मल प्रोग्राम पे यहाँ आ जाए। This is the area that we have calculated and this is the print statement. So length को रीड कर लिया हमने यहाँ पे, width को रीड कर लिया, दोनों ही वेरिएबल्स को कन्वर्ट कर लिया इंटीजर फॉर्मेट में, and finally we have calculated the area, then we have printed the output. So this is the 15, this is the 25, and area of a rectangle having a dimension 15 and 25 is 375.
So I hope the purpose of the input statement is clear to all of you. अगर किसी की कोई query है input statement से related तो अभी आप पूछ सकते हैं. So the main point is input में हम कोई भी डाटा एंटर कर सकते हैं. अगर नंबर आप एंटर करते हैं तो वो भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही स्टोर होता है और कोई भी स्ट्रिंग डाटा भी इनपुट किया जा सकता है. किसी का कोई क्वेरी है इनपुट स्टेटमेंट से रिलेटेड? ओके, हम इनपुट स्टेटमेंट को भी आगे भी यूज करेंगे, तो अगर कोई क्वेरी इन बिटवीन आती है तो भी आप पूछ सकते हैं. तो द नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन नंबर 6. In this case, we are just going to assign 3 variables M1, M2 and M3 और accordingly हम उसका डाटा यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं. In this case, a variable is assigned a mango and in the same script we are going to assign a 20 to the a. तो जब हम मैंगो असाइन कर रहे हैं a में, तो यहाँ पे डाटा टाइप क्या असाइन होगा इसे? str. And in this case, if the same variable is assigned with a 20, in this case the data type assigned to it is integer. तो जैसा डाटा असाइन होगा उसी के बेस पर वो वेरिएबल का डाटा टाइप चेंज हो जाता है. तो लेट वी सी ए है और यहाँ पर हम अजय स्टोर करते हैं और यहाँ पे इसका टाइप चेक कर लेते हैं. तो स्ट्रिंग है और सेम ए में अब हम 10 स्टोर करते हैं और अब इसका टाइप चेक करते हैं. So depending upon this value, data type is allocated to the variable. So ये data type assign कौन कर रहा है? Who is assigning this data type? Who is assigning this data type to the variable? Compiler. Yes, compiler is responsible for assigning a data type to a variable. But how the compiler decide what type of data type is required to assign? So depending upon this data, what we call this data? इस डाटा को हम क्या कहते हैं? ये 10, ये अजय क्या है? ये 10 अजय ये क्या है? स्ट्रिंग. 10 तो स्ट्रिंग नहीं है. अजय स्ट्रिंग होगा सर, str. अजय आया सर. इसको हम कहते हैं लिटरल्स. Literals. Yes, Literals. Ajay and 10 is a literal, and depending upon the literal, the compiler decide what type of data type is required to assign to the variables. So today we are going to see what type of literals are allowed in the Python. आज हम देखेंगे कितने टाइप के पाइथन लिटरल्स पाइथन में अवेलेबल हैं और लिटरल्स के बेस पर कंपाइलर कैसे डिसाइड करता है कि कौन सा डाटा टाइप असाइन करना है. सो दिस इज द असाइनमेंट ऑफ डे 1. अगर किसी का डे 1 के असाइनमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है अभी आप पूछ सकते हैं. If any one of you have any query related with the day 1 assignment, you can ask now. सर. हाँ, listen. अच्छा सर, ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना जो? हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 पे लेके जाइए. इसके अंदर जो इसका पैरा सी है, सी के अंदर x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू ऑरेंज लिखा हुआ है. मतलब एक इंटीजर है और एक स्ट्रिंग है. प्रोग्रामिंग में हर चीज जैसे हम कर सकते हैं, तो इसमें जो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए था, 10 प्लस शो करके ऑरेंज आना चाहिए था, जहाँ ये रॉन्ग दिखाएगा मैसेज. करंटली इसमें अगर आप ये स्टेटमेंट रन करेंगे तो एरर आएगा. रीजन क्या है कि जो 10 है वो इंटीजर है और ऑरेंज स्ट्रिंग है और प्लस साइन डिफरेंट डाटा टाइप्स के बीच में अलाउ नहीं है. तो यहाँ पे एरर आएगा. बट अगर आप इस 10 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दें